Very warm good afternoon to all. On behalf of Organizing Committee of National Summit for Institutional Leaders NSIL 2026, I welcome you all to this theme, Future of Higher Education, Leveraging Technology and AI. The higher education ecosystem in India is at transformative juncture. Driven by digital innovation, the National Education Policy NEP 2020 and the rapid advancement of artificial intelligence AI. As institutions strive to enhance quality, equity, accessibility, and research excellence, AI is emerging as a strategic enabler. This summit session aims to bring together academic leaders, policymakers, technologists, researchers, and industry experts to discuss how AI can reshape higher education while ensuring ethical, inclusive, and sustainable implementation. For this session, we have our session chair, Professor Anupam Shukla, sir. He is from Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat. Professor Shukla is currently working as director at SVNIT Surat, and prior to that, he was director as the Indian Institute of Information Technology, Pune. Earlier to this, he was professor in Department of Information and Communication Technology, ICT, at ABV Indian Institute of Information Technology and Management, ABB IITM. He is author of many books in AI, and he is presently chairman board of governor of SVNIT Surat and was the member of the board of governors Gwalior for 5 years. We welcome you, sir, to this session, and to felicitate him, I would like to invite Dr. Simi Choyal, our partner institution, Shri Mahavir College. This is just a token of gratitude and remembrance that you have shared your time here. Thank you, sir. We have 3 speakers in this session. Our first speaker is Professor R.S. Rathore, sir, State Project Director, Higher Education Council, Haryana. A distinguished academician and policy expert, he plays a significant role in shaping skill development and policy frameworks aligned with national priorities. He also serves as advisor to the Swayam Jayanti Haryana Institute for Fiscal Management, contributing extensively to public finance and governance. His deep experience in policy planning and institutional development provides a meaningful direction for youth involvement and nation building. So, I request Dr. Pallavi Kaushik to kindly welcome our esteemed speaker, Professor R.S. Rathore, sir. Our next esteemed speaker is Wing Commander Sonika Tamar, leadership in information security in Indian Air Force for 14 years, and strategic counseling defines her professional journey with a focus on uniting team to surpass objectives through meticulous attention to detail and multifunctional expertise. An entrepreneur in information security and a strategic business consultant coupled with her experience as a manager at Amazon to deliver robust security solution and drive business excellence. In addition to her consulting acumen, she is a seasoned public speaker and leadership coach known for her engaging presentations that resonate with diverse audience. So I welcome you, ma'am. And now for felicitate her, Dr. Santosh Gupta is invited.
Our next esteemed speaker is Dr. Vijay Chatterjee. He is Principal Scientist from CSIR CERI. So I take privilege to felicitate him myself. So please. So now I would hand over this session to our session chair, Professor Anupam Shukla sir. Session is all yours, sir. Please. So good afternoon, everybody. So we have eminent speakers with us. So I request them, each speaker, to finish their talk within 15 minutes of time. Then after the speeches of the three speakers, we have a discussion, and then we conclude the session, and I will speak at the last. So I request the speaker, Professor R.S. Rathore, Senior Project Director, Haryana State Higher Education Council, Haryana, to start the event. Thank you. Thank you so much. So the session जैसा सुबह स्टार्ट हुआ तो हायर एजुकेशन में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूज़ ऑफ एआई कि आज एआई का क्या रोल हो सकता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसके डेंजर्स क्या होंगे. अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि 7th फैब को दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कि सारे स्किल यूनिवर्सिटी के लीडर्स जितने हैं, स्किल इकोसिस्टम के लीडर्स जितने हैं, वो स्किल इकोसिस्टम के लीडर्स उस प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे. और ऐसा कोई भी अगर कॉमन प्लेटफॉर्म बनता है तो जैसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा, स्पेशली जब एकेडमिशियन का पैनल बनता है या एकेडमिशियन का अगर इस तरह की कोई बैठक होती है तो उसमें एक चर्चा या एक विषय कहीं ना कहीं से अमूमन आता है. वो ये है कि एआई के आने के बाद टीचर्स का रोल क्या होने वाला है, टीचिंग का महत्व क्या होने वाला है. इस तरीके से जो मैं 7 तारीख की वर्कशॉप कह रहा हूँ, 7 तारीख की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस पर बहुत गहन चर्चा हुई कि हमें अपने आप को, जो टीचर्स है स्पेशली टीचर्स को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा एआई के ज़माने में. बार बार ये चर्चा आती है कि एआई के आने के बाद, चूँकि हम लोग एकेडमिक्स से हैं इसलिए एकेडमिक्स की ज़्यादा बात करेंगे. इंडस्ट्री से मैम सोनिका प्रेजेंट है और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से चक्रवर्ती साहब प्रेजेंट है जो कि बाकी बात करेंगे. हम लोग स्पेशली बात करेंगे एकेडमिक्स के फील्ड में कि एकेडमिक्स के फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस हो सकता होगा एआई का. जैसा मैंने एक अभी कहा कि किस तरह से टीचर्स को अपने रोल को रीडिफाइन करने की आवश्यकता होगी. ये चर्चा बहुत फ्रीक्वेंटली होती है कि एआई के आने के बाद जो जॉब्स हैं, नंबर ऑफ जॉब्स विल रिड्यूस, कि किस तरह से जॉब्स कम हो जाएंगे. लेकिन ये कोई नई चर्चा नहीं है, ये बहुत मुझे लगता है कि दशकों से इस तरह की चर्चा चलते रही है. जो पुराने कुछ लोग एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे उन्हें पता है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हुई तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब बात करते थे तब यही बात आती थी कि इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और मैसिव प्रोडक्शन होने लग जाएगा अगर, तो बाकी किसान सारे बेरोज़गार हो जाएंगे. या आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये सारे किसानों का जो हाथ का काम है सारा हाथ का काम छीन लेगा. ये 30, 40, 50 साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. 80 के दशक में, 90 के दशक में वापस इस तरह की चर्चा फिर से शुरू हुई कि जब कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ कि जैसे ही कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर आते ही लाखों लोगों के जॉब्स वापस चले जाएंगे. लेकिन फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ. वापस वही चर्चा एक बार फिर से हो रही है, लेकिन वो एक नए संदर्भ में कि एआई के आने के बाद
बहुत सारे जॉब जाने वाले हैं, और जो बार बार चर्चा हो रही है कि सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो टीचिंग कम्युनिटी को है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एआई के माध्यम से स्टूडेंट अपने आप को ज़्यादा कन्वर्सेंट या ज़्यादा कंफर्टेबली उसमें एडजस्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पर जो रोल होना है, जो टीचर्स का रोल होना है, वो टीचर्स अपने आप को, ये तो फैक्ट, ये हम सब मान के चलते हैं जितने लोग बैठे हैं, कि जो एआई का इंटरवेंशन है वो एक्सेप्टेड है, मीन से कहीं रुकना नहीं है। इसके यूजेस एक्सेप्टेड है कि इसके यूजेस जो हम सोच रहे हैं हो सकता है उतना, हो सकता है उससे ज़्यादा। सुबह वाले सेशन में IIIT के डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि अभी बहुत कुछ इसमें और आगे होना है, तो इसमें क्या होना है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि आज एक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हमारे डेस्कटॉप पर, हमारे लैपटॉप पर, हमारे मोबाइल्स पर है, और उसको यूज़ करना न करना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको करूं या ना करूं, हमारी मजबूरी है। मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि मैं उसको यूज़ करता हूं अपने बेनिफिट के लिए या स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए कैसे कर सकते हैं, वो एक्चुअली हमें आज की तारीख में सीखने की आवश्यकता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से लिवरेज कर सकते हैं। मैं 2-3-4 छोटे-छोटे एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला, जब हम एग्जांपल देने से पहले एक मुझे एक चीज़ और याद आ गई। हरियाणा स्टेट में भी हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम अनाउंस करी, हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन फंड, जिसमें कि रिसर्च प्रपोजल्स इनवाइट किए गए, और वो रिसर्च प्रपोजल दोनों से, स्टूडेंट से भी इनवाइट किए गए और टीचर्स से भी इनवाइट किए गए। जब वो रिसर्च प्रपोजल इवेल्युएट हो रहे थे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या दिया था, कुछ थेमेटिकल एरियाज़ दिए हुए थे कि जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए इन 6 थेमेटिकल एरियाज़ पर होने चाहिए। तो जो बहुत एक्टिव यूज़र हैं एआई के, उन्होंने किस फील्ड में रिसर्च होनी चाहिए वो भी एआई से ही पूछा कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च के लिए टॉपिक चाहिए, एआई ने टॉपिक बता दिया। उन्होंने उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल मांगा, एआई ने उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल बता दिया। अब एआई क्या करता है, आपको ऑप्शन भी देता है कि आपको ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो। एआई ने दूसरा प्रपोजल दिया। जो पीआई थे जिन्होंने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, पीआई ने बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए जो एआई ने सजेस्ट किया वो एज इट इज़ उन्होंने सबमिट कर दिया। प्रेजेंटेशन के लिए जब वो सामने आया, प्रेजेंटेशन के लिए जब बोर्ड बैठा हुआ था, बोर्ड ने पूछा उनसे कि आपने 2 प्रपोजल दिए हुए हैं, कौन सा इवेल्युएट करना है। बोला 2 कैसे आ गए आपके पास, मैंने तो एक के लिए कहा था। अब लगातार चूँकि वो सीक्वेंस चल रही थी, जो भी एक्सपर्ट्स बैठे थे उन्हें पता था कि मैक्सिमम जो प्रपोजल आ रहे हैं मोर देन 50% जो कि एआई जनरेटेड प्रपोजल्स थे बेसिकली, उन्हें पता था। उन्होंने उनको समझाया कि एआई का जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी बेसिक इंटेलेक्ट जो भगवान ने दे रखी है हमें, उसको भी कहीं ना कहीं यूज़ करना है। एक बार उसको पढ़ तो लेते, कम से कम अगर पढ़ लेते तो एक ऑप्शन आप ऑटोमेटिकली हटा लेते। तो हम उसको इस तरह से ओवर यूज़ ना करें, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं बोल रहा हूँ, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देते हैं। अगर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, भी मान के चलते हैं कि स्टूडेंट वो प्रोजेक्ट एआई से लिखवा कर दे रहा है। अगर हम स्टूडेंट को बोलते भी हैं कि एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आएगा वो कहीं ना कहीं, इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे टूल हैं कि कोई ना कोई टूल का इस्तेमाल करके वो एआई जनरेटेड आपके पास प्रपोजल आएगा। अब एज अ टीचर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो रोल बनता है, वो रोल ये हो सकता है कि हम स्टूडेंट जब वो एआई जनरेटेड अपना प्रपोजल या प्रोजेक्ट या रिपोर्ट लेकर आता है, उसमें से कम हम उस स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेटे एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लिमिटेड इंटेलिजेंस है, इससे एक लेवल ज़्यादा की इंटेलिजेंस आप कैरी करते हो, तो ऐसी क्या वैल्यू एडिशन है जो एआई नहीं कर सका आप इसमें ऐड कर सकते हो, एटलीस्ट वो आप उसमें ऐड कर दें। तो एक स्टेप कम से कम आपने, उसने जो यूज़ किया एज अ प्लेटफॉर्म उसे यूज़ करने दें, लेकिन एक स्टेप ऊपर आप कहीं ना कहीं उसके क्यूरियोसिटी के बेसिस पर, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप करके आप उसी
कंटेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करवा सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये सब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस टूल को बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट के इंटेलेक्ट को, स्टूडेंट के नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी चीज़ें डिवाइस करनी पड़ेगी, जो इनोवेट करनी पड़ेगी, ये हर आदमी के लिए इंडिविजुअल होगी, हमें खुद से करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, जो कि बहुत यूज़फुल हो सकता है, और स्पेशली मैं जब कुछ अपने नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात करता हूँ, जिसमें कि जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट वाले स्टेट्स हैं, जब उनकी बात करता हूँ, हमारे पास जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि जो स्किल्स हैं, दो तरह के स्किल्स हैं, एक हार्ड स्किल है, एक सॉफ्ट स्किल है। हार्ड स्किल्स में तो हो सकता है हम अच्छे हैं, बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन जब सॉफ्ट स्किल की बात आती है तो सॉफ्ट स्किल स्पेशली जो 2-3 स्टेट बोल रहा हूँ, या चूँकि मैं हरियाणा में अभी सर्व कर रहा हूँ बहुत टाइम से, हरियाणा जैसे स्टेट में सॉफ्ट स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो सॉफ्ट स्किल डेवलप करने में एआई को बहुत इफेक्टिवली यूज़ में ला सकते हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना स्टार्ट किया अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल में फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं क्लास में उस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँ। टीचर अगर मुझे खड़ा होकर एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलता है, मैं हेजिटेट करता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ मेरे जो पीयर बैठे हुए हैं कि कहीं मजाक नहीं उड़ाएं। लेकिन सेम चीज़ क्या हो सकती है, आजकल इस तरह के एआई टूल अवेलेबल हैं कि आप एक पैरा अगर पढ़ के दे रहे हो, तो उस एक पैरा के बेस पर एआई कैन सजेस्ट यू कि आपने कहाँ कहाँ किस किस तरह की मिस्टेक की, आप रिपीटेडली उसको वापस रिवर्क कर सकते हो। तो रिपीटेड काम जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट का काम है, इस तरह के काम के लिए एआई को इफ़ेक्टिवली यूज़ में लाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। हम चूँकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा स्किल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी है, या स्किल इकोसिस्टम से रिलेटेड भी है, तो स्किल इकोसिस्टम में जो रिपीटेड काम होते हैं, वो रिपीटेड काम के लिए एक बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए होता है, और वो डेटाबेस इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते होंगे अगर हम एआई का अप्रोप्रिएटली या एआई प्लेटफॉर्म को उस तरह से ट्रेन करें। चूँकि समय की मर्यादा रखनी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा सिंपल एक सेंटेंस को कहते हुए, एआई इज़ द नेसेसिटी, वी ऑल विल हैव टू अडॉप्ट इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। उसको कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे मोल्ड करना है, दिस ऑल वी विल हैव टू थिंक। वो सब हमें अपने आप अपनी टेक्निक्स का इजाद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स अ लॉट। So thank you very much, Professor R.S. Rathore. I request Wing Commander Sonia Tanwar, CEO Digitrust, to give his talk. Jai Hind everyone. So I completely understand कि लंच के बाद वाला सेशन बहुत चैलेंजिंग होता है, but let us sail through the challenge together. And the just one key takeaway which I would like you to have from this session is the topic itself, understanding AI in education. Education बोलो आप या कोई भी डोमेन, बिना उसका एसेंस खराब किए जो ज्ञान हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, उसको डाइवर्ज किए बिना अगर हम AI यूज़ कर पा रहे हैं और कर सकते हैं, दैट इज़ द रियल चैलेंज दैट वी हैव टू कॉम्बैट हेयर। सो अंडरस्टैंडिंग AI। 2017 में जब सुंदर पिचाई जी ने कहा था कि गूगल, ही वाज CEO ऑफ अल्फ़ाबेट, सो ही सेड कि गूगल विल नाउ बी मूविंग एंड वी आर मूविंग टू अ AI फर्स्ट कंपनी। आई वॉज पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट दैट टाइम, तो हम सोच रहे थे कि हाँ गूगल नहीं मूव करेगा तो कौन करेगा, यू हैव दी कैपेबिलिटीज़ एंड इम्प्लीमेंट भी आपके यहाँ पर ही होगा। बट धीरे धीरे वी सॉ कि ई कॉमर्स ने AI यूज़ किया, हमारी हैबिट्स ट्रैक की, खरीद क्या रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, एंड दे increased their business. So when I said they increased their business, impact उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया। Okay, so this gentleman cadet is very smart, वो बिना मेरे बोले ही आगे कर रहे हैं, but okay, let that be. So I'll otherwise give you a hint when to advance this slide.
एंड आई रिक्वेस्ट यू 10 मिनट जब हो जाए तो हाथ खड़ा कर देना, आई माइट नॉट बी एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइम. सो दैट टाइम ई कॉमर्स यूज द AI. उसके बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने दे थॉट कि कितना व्हाट आर माई लाइफ स्टाइल हैबिट्स, मैं वॉक पे जाती हूँ नहीं जाती, खाना क्या खाती हूँ, कितने दिन बाहर खा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को अगर मुझे कोई मेडिकल इंश्योरेंस देना है तो प्रीमियम क्या रखना चाहिए. दे यूज्ड इट फॉर देमसेल्व्स. एवरी इंडस्ट्री केप्ट यूजिंग AI एंड ग्रोइंग. एंड देन कोविड केम एंड दैट वाज द टाइम जो बची हुई भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको पता चल गया कि AI को कितना यूज़ करके वो क्या क्या कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री. बिकॉज उस टाइम पर एक तरफ बालाकोट ऑपरेशंस चल रहे थे, एक तरफ कोविड था. राइट पर्सन को पोजीशन कैसे करना है राइट स्किल के लिए, राइट जॉब के लिए, कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये पूरा वॉरफेयर उसके अंदर AI helped the organizations, it helped the nation decide, take right decisions. So the question here is, AI वही करेगी जो हम उसको करने के लिए बोलेंगे, जैसा हम उसको ट्रेन करेंगे. तो अगर हम चाहते हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा के हिसाब से जो हमारे इंडियन एजुकेशन के वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करके AI स्टूडेंट्स तक पहुँचाए, AI वो कर लेगी. लेकिन कब? जब यहाँ पर बैठे हुए हम सब लोग हु आर द डिसीजन मेकर्स इन द इंस्टीट्यूशंस, दे डिसाइड कि हम करवाना क्या चाहते हैं AI से. सो द रियल क्वेश्चन इज, नाउ प्लीज एडवांस द स्लाइड. नॉट अबाउट कि बच्चे ChatGPT से असाइनमेंट कर रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड प्लीज. नॉट अबाउट कि बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं ChatGPT से. इट इज़ नॉट अबाउट ग्रेडिंग कैसे देनी है उनको ऑटोमेट करके. नॉट अबाउट कि स्मार्ट ट्यूटर्स हम AI के को लाकर क्या सिखा दें. क्वेश्चन इज़, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन AI का फ़ायदा उठा रही है? अगर हम एज अ इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि बच्चों में कोर वैल्यूज़ इनकलकेट हों, अगर एजुकेशन अच्छी जाए, इंडस्ट्री में क्यों आज इतना गैप है कि व्हेन द स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्यों वो एम्प्लॉयमेंट एकदम से नहीं ले पाते? अगर हम चाहते हैं वो गैप ना रहे, देन इट इज़ ऑन टू अस टू डिसाइड कि स्ट्रैटेजिकली, IT छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, स्ट्रैटेजिकली हम कैसे यूज़ करें AI को कि हमारा इंस्टीट्यूट AI फ्यूल्ड बन जाए. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर नाउ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. तो अब हम मिस क्या कर रहे हैं? एज वी स्पोक, हम सब बातें करते हैं AI लिटरेसी होनी चाहिए, मुझे चलाना आना चाहिए सारे टूल्स को, AI ट्यूटर्स, AI टूल्स, AI फॉर स्टूडेंट्स. नो, सोचना क्या है, ये सब तो हो ही रहा है. विल नॉट कमेंट और टॉक अबाउट इट. वो आप बच्चों को नहीं भी बताएंगे, दे विल लर्न देमसेल्व्स. बट AI एज एन इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मेरा इंस्टीट्यूट आज AI यूज़ करके पता कर सकता है कि क्या कौन सा बच्चा किस एप्टीट्यूड के लिए आगे जाके सक्सेसफुल होगा, दैट इज़ वेयर माई थॉट प्रोसेस शुड गेट इनटू, एंड दैट इज़ वेयर माई स्ट्रैटेजिक लीडरशिप शुड फोकस. Am I using AI as strategic differentiation? Am I using AI as decision intelligence? Am I using AI as governance infrastructure? अगर हम as leaders ये चीज़ें सोच लें, that would actually be growing the institution and also impacting where it should be impacting. Next slide please. So AI education का tool है, सिर्फ एजुकेशन का टूल नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर है. अगर आप चाहेंगे तो उसको हम मैच्योरली डिज़ाइन कर सकते हैं. क्या डेटाज हैं हमारे पास, तो क्या क्या हम चाहते हैं AI से करवाना. अगर हम चाहेंगे कि वो ChatGPT आपके लिए करके दे दे तो वो वही करेगा जो एलन मस्क ने उसको बोला है. बट अगर हम चाहते हैं कि हम इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के लिए जो चाहिए, हमारे इकोसिस्टम को जो चाहिए, देन वी कैन नॉट रेंट AI. और उसमें फिर हमने सोचकर अपने डेटा सेट्स डिसाइड करके हम चाहते क्या है, बच्चों को समझाना, उनको पढ़ाना क्या है, हमें कैसी जॉब्स के लिए तैयार करना है. If we want that, we have to devise our own AI, and that is what actually we have to think here. So next slide please. So unexplored area आज क्या है हमारे पास when it comes to AI? Institutional intelligence. इतने बच्चे आते हैं हमारे पास, किसी का entrepreneurial skills होते हैं, कोई leadership में अच्छे हैं, कोई as a working team अच्छा है. Are we utilizing that intelligence? Data बहुत है हमारे पास, लेकिन
वो दिमाग लगाकर कि हम उस डेटा को यूज़ करके नेशन बिल्डिंग में कैसे लगाएं, बिकॉज एवरीवन सिंस मॉर्निंग आई एम हियरिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल सोवेनिटी हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन बिल्डिंग एंड विकसित भारत। तो हमारा रोल है क्या एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसमें। द रीज़न मैं इतनी कन्विक्शन से ये इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन इन पोजीशंस वेयर वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग यंग ऑफिसर्स। तो हमें यही काम करना होता था कि वो किस एरिया में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो उनकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ एक्सट्रैक्ट हो पाएगी। सो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर हेयर, इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस यूजिंग AI। बिल्कुल यूज़ कीजिए, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, नहीं यूज़ करेंगे तो खुद को डिस्टर्ब कर लेंगे, बिकॉज देन विल बी लैगिंग बिहाइंड एंड दैट इज़ नॉट अ चॉइस। कोविड हैज़ टॉट अस दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो AI और क्या क्या कर सकता है आपके लिए? एडमिशन्स कन्वर्जन प्रेडिक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द कोर दैट योर इंस्टीट्यूशन इज़ हैंडलिंग। स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, दैट प्रेडिक्शन AI कैन गिव यू। ऑप्टिमाइज फैकल्टी एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, उसका एब्जॉर्प्शन बाय स्टूडेंट्स अलग है। अगर हम वो स्टडी करके ऑप्टिमाइज़ कर लें कि किस फैकल्टी को कहाँ एलोकेट करना, कब एलोकेट करना, किस टॉपिक के लिए एलोकेट करना है, हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन एंड द मिशन इज़ लाइक नियरली अकम्प्लिश्ड। डिटेक्ट क्यूरिकुलम आपका इरेलीवेंट तो नहीं हो गया, 3 साल पहले जो इंडस्ट्री को चाहिए था वही तो नहीं पढ़ा रहे हम। यू कैन यूज़ AI टू प्रिडिक्ट दैट। फोरकास्ट प्लेसमेंट सक्सेस एंड आइडेंटिफाई ब्रांड परसेप्शन ड्रिफ्ट। क्यों आज हम एक एज एन इंस्टीट्यूशन अच्छा कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद हमारा ब्रांड का परसेप्शन चल क्या रहा है मार्केट में, बच्चों को मे बी कुछ और चाहिए और हम पढ़ा कुछ और रहे हैं। सो दैट गैप कैन बी फिल्ड विद यूजिंग AI लॉजिकली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। So again, we are here, but how many of us use AI to predict placement outcomes? कभी कभी क्या होता है, प्लेसमेंट हो भी गई, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बट वो बच्चा आगे जाके ना लीडरशिप पोजीशन ले पा रहा है, ना मे बी कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। सो दैट गैप अगर हम अभी जब वो 4 साल 3 साल पढ़ाई कर रहा है, इफ़ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट इट एंड एड्रेस इट राइट नाउ, सो इट्स सेविंग अ लॉट ऑफ वैल्यू और नेशन के लिए बहुत एनर्जी भी बचा रहा है, रिसोर्स भी बचा रहा है। सो दैट दोज आर ऑल द रिसर्चेस अवेलेबल एंड वी कैन यूज़ AI टू डू दैट। नेक्स्ट प्लीज। So these are all the steps which maybe when we serve a client and उनको अपना business अगर AI automate या AI fuel करना है तो we take care of all those steps, but getting into detail would consume a lot of time. So we'll come here AI as a strategic mode. So 5 साल में 2 ही तरह के इंस्टीट्यूट्स रहेंगे। मैं नहीं बोल रही इट्स अ स्टडी, आई शुड हैव रिटन द रेफरेंस हेयर, बट आई टेक दैट ब्लेम। बट 2 टाइप के B स्कूल्स रहेंगे। वन इज़ AI असिस्टेड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो चॉइस नहीं है, असिस्टेंस AI की हम सबको लेनी पड़ेगी, वो हम ले भी रहे हैं। सारी वेबसाइट्स पे आजकल एक चैट बॉट तो आता ही है जो हम देखते हैं कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, बट दैट्स अ वेरी शैलो यूज़ ऑफ AI। वो बहुत कुछ कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है इन द सेकेंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स विच आर AI ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। AI असिस्टेड जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, AI के टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, चैट बॉट, कभी मान लिया ईमेल ऑटोमेट कर दिया और एग्ज़ाम्स के टाइम में मेल ज़्यादा भेज रहे हैं, या मे बी एडमिशन्स के टाइम में दे आर रीचिंग आउट टू पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, पोटेंशियल स्टूडेंट्स, या फिर फैकल्टी लेड एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, छोटे मोटे पायलट्स कर रहे हैं इधर उधर कि यूज़ कैसे करें AI को। बट AI ड्रिवन इंस्टीट्यूट्स वो होंगे जिन्होंने डिसीजन डैशबोर्ड्स बना रखे हैं कि अगर लर्निंग एप्टीट्यूड इस बच्चे का इस कोर्स में ऐसा है, धीरे धीरे जाकर व्हेन वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट देन वी कैन डिसाइड कि उसके लिए सही करियर क्या है। We will be saving on a lot of national resource when we do that kind of decision making using AI, which is very well possible. वो एल्गोरिथम्स बनाने वाले टेक कंपनीज बना देगी, बट आपको उस AI से चाहिए क्या? वो तो हमें यहीं से इसी रूम से डिसीजंस चाहिए होंगे और जो देने भी पड़ेंगे। एंड
डेटा ड्रिवन क्यूरिकुलम अगर डिज़ाइन करना है, राइट नाउ क्यूरिकुलम बहुत चेंज हो रहा है एज़ पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स एंड एज़ पर द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप. तो वो सब AI ड्रिवन इंस्टीट्यूट कर पाएगा. प्रेडिक्टिव एकेडमिक प्लानिंग एंड AI इन्फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स, ये सब है AI ड्रिवन इंस्टीट्यूट. सो वी आर इन द सेकेंड पार्ट यूजिंग AI टू गवर्न आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो फ़ायदा ना सिर्फ बच्चों को हो रहा है, ना सिर्फ खुद की फैकल्टी को हो रहा है, ना सिर्फ ब्रांड रेपुटेशन को हो रहा है, ओवरऑल एक पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हो रहा है. सो व्हेन वी से कि भारतीय ज्ञान परंपरा, सो दैट इज़ वेयर वी विल बी मेकिंग द रियल इम्पैक्ट बाय यूजिंग AI एंड इट हैज़ द पोटेंशियल. अच्छा खासा पोटेंशियल है उसमें एंड वी कैन वेरी वेल डू दैट. नेक्स्ट प्लीज़. So every institution already has, ये जो मैंने we did a research, ये सब है हमारे पास, बट क्या है एज स्टोरेज. उससे आप विज्ञान से ज्ञान क्या निकाल रहे हैं? ऑब्जर्वेशंस हैं, रिसर्चेस हैं, पेपर्स हैं, तो उससे अगर हमें कुछ ज्ञान निकालना है, दैट इज़ व्हाट कैन बी डन विद डेटा मॉडलिंग. वो बहुत कम स्कोप है. I'll apologize in case I am saying it this way, but a lot of institutes which we could interact with, केस यही था. रिसर्चेस बहुत अच्छी हो रखी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी वाले मॉडल्स हैं दे वर नॉट इन प्लेस. 10 मिनट्स नहीं हुए? हो गए? ओके, नेक्स्ट प्लीज़. So, though we teach our students about predictive analytics, होने क्या वाला है फील्ड में, वो हम सिखाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं, रिस्क मॉडलिंग सिखाते हैं, डिसीजन साइंस भी सिखाते हैं, बट आज की डेट में वो सिर्फ एक्सेल पे या पेपर पे इतना सब काम नहीं कर पाएगा. तो हम AI नेटिव खुद नहीं बन रहे हैं. खुद उनको जब तक देखिए इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं हाउ वी आर यूटिलाइजिंग AI, it will not be feasible to just mention AI as a enabler in letter. It has to come in spirits also, which right now I'm not saying कि बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, but there is a huge scope of improvement that we should combat and we should be able to club the gap. Next please. So AI can act as a placement engine, but I will not harp more about it. But as we are recommending कि पहले ही साल में अगर पता चल गया कि किस तरफ aptitude है, तो why waste 2 or 3 years? We can give those insights in the first or second year only. Next. AI for faculty augmentation, it's a very unexplored zone which we briefly spoke about. So faculty evolve होती है content deliverer से. So जो learning architect है पूरा, वो सारा का सारा architect in conjunction with the industry norms that can very well be modeled using AI. कर हम पेपर पे भी सकते हैं, बट कितना करेंगे? बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है एंड थिंग्स आर चेंजिंग. सो दिस इज़ अनएक्सप्लोर्ड एरिया. यू माइट प्लीज़ थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट वन. AI governance, this is a risk बिकॉज सारे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं. जैसे अभी राठौर सर ने बताया कि AI यूज़ करके द असाइनमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बट एज एन इंस्टीट्यूट आर वी इनेबल्ड, आर वी पावर्ड इनफ टू मेक आउट? क्योंकि वो तो चलिए 2 ऑप्शन थे, दिख गए. इतने सारे अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आएंगे और हमें पता ही नहीं है कि विच आर जनरेटेड बाय AI, तो देन हाउ आर वी गोइंग टू डू जस्टिस टू द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली वर्कड हार्ड इन दैट रिपोर्ट, और समबडी हु हैज़ जस्ट यूज स्मार्टर टूल्स, मे बी थोड़े प्रॉम्प्ट्स अच्छे दे दिए. सो दैट वेज द गवर्नेंस इटसेल्फ हैज़ टू बी मॉनिटर्ड एंड इट्स फीजिबल. बट क्या हम उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं इज़ द क्वेश्चन हेयर. डू वी हैव अ AI यूसेज पॉलिसी इन द इंस्टीट्यूट? डू वी हैव ऑडिट? आर वी ऑडिटिंग द AI बायसेस? एंड इफ नॉट, दिस इज समथिंग वी शुड डू, बिकॉज एक्रीडेशन क्राइटेरिया धीरे धीरे विल come around AI governance of the institutes also. Next slide please. Okay, I will not harp much on it because competitive landscape shift कैसे हो रहा है AI को use करके, we all
are already aware of. तो what students are preferring, क्योंकि जब वो चाहते हैं कि वो पास होकर बाहर जाए, they want themselves to be ready to tackle the problems that the industry is asking them to tackle. So that is what derives the competitive landscape. Next please. So this is the framework. I wanted to come to this stage. AI readiness के 5 pillars हैं जो as an educational institute या as any organization we should be able to define. तो हम सबसे पहले डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका डेटा ही इतना स्कैटर्ड पड़ा है, तो उससे कुछ इन्फर कैसे करेंगे इंटेलिजेंस व्हेन वी हैव नॉट स्ट्रक्चर्ड द डेटा इटसेल्फ. डेटा की कमी नहीं है बहुत, बट दिस इज़ द फर्स्ट एंड ये लास्ट तक की सारी स्टेप्स हैं इसमें. सो वी कैन सी फॉर आवरसेल्व्स कि हम कहाँ किस स्टेप पर हैं अभी और कहाँ तक हमें जाना है. नेक्स्ट प्लीज़. तो हमें रिस्क हमेशा ये लगती है कि कल AI हमारी जॉब्स ले लेगा, टीचर्स रिप्लेस कर देगा, बट रिस्क वो है ही नहीं. एक्चुअली रिस्क है कि स्टूडेंट्स विल लर्न फास्टर आउटसाइड योर क्लासरूम. हम अंदर जो पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा वो यूट्यूब पे अगर सीख रहा है. रिस्क वो है हम इंस्टीट्यूशंस के लिए. रिस्क इज़ कि रिक्रूटर्स विल वैल्यू AI नेटिव ग्रेजुएट्स. वो देखेंगे अच्छा इसने AI की ये कोर्सेज कर रखे हैं, फिर वो कहाँ से पास आउट हुआ है, क्या कल्चर्स लेकर आया है, किन लोगों के बीच में पढ़ा है, उसको और क्या सिखाया गया है, विल नॉट मैटर. एंड फाइनली रिक्रूटमेंट क्योंकि AI नेटिव होने की वजह से हो रही है, इट विल हिट us where it actually hits the most. रिस्क है कि रैंकिंग्स विल रिफ्लेक्ट डिजिटल मेच्योरिटी एज एन इंस्टीट्यूशन. हमारी रैंकिंग्स बताएगी कि हम डिजिटली मेच्योर कितना है. एंड रिस्क ये है कि अपना क्यूरिकुलम विल लैग इंडस्ट्री बाय 3 years. दिस इज़ ऑल बाय नॉट बीइंग AI fueled. And this can all be turned upside down if we just decide to take that strategic decision कि AI से डरना नहीं है, भागना नहीं है, टेक्नोलॉजी है, आएगी ही आएगी, लाइफ में आ चुकी है, यूटिलाइज इट टू एम्पावर आवरसेल्व्स. नेक्स्ट प्लीज. I'll very soon be concluding. Gentlemen please. सो लीडर्स को करना क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं करने AI टूल्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बट AI की स्ट्रैटेजी बनाइए. आपको चाहिए क्या, चाहते क्या हो आप, AI आपके लिए करे क्या, आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या करे, गवर्नेंस के लिए क्या करे, प्रोडक्टिविटी एडमिशन टाइम पे क्या करे, एग्ज़ाम्स टाइम पर क्या करे. तो AI शुड नॉट सिट इन IT डिपार्टमेंट, इट शुड हैव अ प्लेस इन स्ट्रैटेजिक बोर्ड. नेक्स्ट. So I wouldn't take much time. AI will not make education inhuman, but poor leadership will. अगर आज हमने AI अच्छे से यूज़ नहीं की, किसी और की ही प्लेटर में परोसी गई AI हम अपने बच्चों के लिए यूज़ करते रहे, that is what is going to hamper us. So एजुकेशन इनह्यूमन नहीं बनेगी AI के होने से, लेकिन इनह्यूमन बन सकती है अगर एज टुडे एज लीडर्स वी आर नॉट लीडिंग एंड मेकिंग इट अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन. नेक्स्ट प्लीज. ओके, थैंकफुली आई हैव कम टू द लास्ट slide. So question is not whether AI will enter your institution. The question is whether your institution will enter the AI era deliberately or accidentally. So it is a choice to be made. Make a wise one, make a good one. That's all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much. Our next speaker is Dr. Vijay Chatterjee, Principal Scientist, CSIR CIRI. Good afternoon, one and all. I am from CSIR CIRI, which is one of the 37 labs of CSIR. As you all know, CSIR is Council of Scientific and Industrial Research and established in the year 1942, even before the independence of the country. And pan-India we have 37 labs. Our lab is CSIR CIRI, that is Central Electronics Engineering Research Institute, which is in Pilani. We have a campus in Jaipur and we have a center at Chennai. So as
thankfully my previous speakers have given almost all the ideas that is required for us today, and as you know, mixed in Hindi and English, I would like to say कि बहुत समय पहले एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब का नाम था यू कैन विन, और शिव खेरा जी ने लिखा था उसको, और उसका हर एक पन्ना पलटने पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मुझे पता है और ये भी मुझे पता है। तो AI पे हम सबको ऐसे ही लगता है कि ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी है। ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे मैडम ने अभी बताया कि आप चाहो या ना चाहो ये इम्प्लीमेंट हो रही है, एक्सीडेंटली हो या डिलिबरेटली। तो ज़रूरी ये है कि हम कैसे उसको अपने मतलब के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी को आज के डेट में अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बाकी लोग आपसे इतना आगे निकल जाएंगे कि आप रेस में इतने पीछे हो जाएंगे कि कल आप जब शुरू करेंगे तो आप उससे वो हमेशा ही आगे रहेगा। और जैसे कि जो मेरा अनुभव है पिछले, जो मेरा एकेडमिक्स कैरियर का और जो मेरे अभी 10-12 साल जो मेरा जॉब है CSR सीरी में, बेसिकली हमारे लैब में बहुत सारे AI के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एप्लीकेशंस पे हम काम करते हैं। तो जो मुझे जो उसके अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, और इनफैक्ट आप अपना रहे हैं। जैसे मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में, तो आज देखिए कि आपका लाइफ पूरा इसी से घिरा हुआ है। आप एक दुकान में अगर जाते हैं, आजकल ज़्यादा ई-शॉप्स है, तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस आपके चॉइसेस को वो मॉनिटर करके आपको प्रिडिक्ट करके आपको कोई नया ऑप्शन दे रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं सिर्फ आज का ये इस संदर्भ में अगर बात करूँ तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में AI इन एजुकेशन इज़ नॉट मेरली ए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, बट इट इज़ ए नेसेसिटी। और नेसेसिटी इसीलिए है कि जो हमारे नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे हमारे NEP 2020 है या डिजिटल इंडिया मिशन है, तो हमें आज की डेट में ये इस पर्टिकुलर जो टूल है AI को, मैं बोल सकता हूँ कि वी कैन यूज़ इट एज ए टूल फॉर द नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। और पूरा ग्लोब इसी के पीछे भाग रहा है। आज की डेट में अगर देखें तो इंडिविजुअल एक आदमी जो एक पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर कंट्री USA में एक अलग अपना भूमिका रखता है, एलॉन मस्क। आप अगर देखेंगे कि उसका टूल्स क्या है, किस टाइप के टूल्स को वो यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैडम ने बताया उसी कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, जैसे पर्सनलाइज लर्निंग फॉर डाइवर्स लर्नर्स। जब भी हम किसी क्लास में जाते हैं, तो जैसे मैं काफ़ी समय मैं भी पढ़ाया हूँ, तो जो मेरा पर्टिकुलरली जो व्यू है किसी स्टूडेंट्स को देखने का 3 टाइप मैपिंग है। एक तो ये ऊपर आपके ऊपर निकल जाएगा कोई बच्चा, या आपके लेवल में, या आपके बिलो। इस 3 बेसिकली पैनल्स बनते हैं बच्चों के। तो आप ये टूल लगा के आप ये कोशिश कर सकते हो, क्या करिकुलम के कुछ हिस्सों को क्या मैं ऐसे मैन्यूवर कर सकता हूँ कि ये तीनों एक ऐसे लेवल पे आए कि तीनों एक ही लेवल पे आगे बढ़े। एटलीस्ट आपका काम वहाँ पे आप बोल सकते हो कि नाउ आई एम सक्सेसफुल। सिमिलरली जो अर्बन रूरल एजुकेशन गैप्स है, अभी भी हमारे कंट्री में ये गैप है। और सर कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे एक नया ऐसा यूनिट के बारे में पता चला। और क्योंकि जो हमारे यहाँ पे गैदरिंग है, मैं समझता हूँ कि मोस्टली आप एजुकेशन फ्रैटर्निटी से हैं या कोई इंडस्ट्री से हैं, तो ऐसा यूनिट्स जो है हम पढ़ते हैं। एक नया ऐसा यूनिट मुझे कैसे पता चला, सपोज़ कि मैं आज की डेट में बोलूँगा कि जयपुर से दिल्ली मुझे जाना है, और आपसे मैं रैंडमली पूछूंगा कि क्या डिस्टेंस रहा होगा, तो यूजुअली आंसर हम क्या करेंगे कि 200 किलोमीटर्स, या फिर हम बोलेंगे कि 4.5 आवर। तो एक कोई पर्टिकुलर ट्राइबल को हमने ट्रेनिंग दे रहे थे यहाँ पे हमारे कैंपस में, तो जब उनसे पूछे कि वो जैसलमेर करके एक विलेज है उदयपुर के सामने, तो उनसे जब पूछा कि उदयपुर से जैसलमेर जाने का क्या डिस्टेंस क्या है, तो आई वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ गॉट टू नो ए न्यू टाइप ऑफ SI यूनिट विच इज़ नॉट रिटन इन एनी बुक। वो बोला 40 रुपया। उनके लिए ना पैसा, उनके लिए ना टाइम इम्पॉर्टेंट है ना किलोमीटर, उनके लिए वैल्यू फॉर मनी
सो क्या हम लोग AI का यूज़ करके ये जो गैप है, एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा ये गैप जो है, क्या हम AI को एज ए टूल यूज़ करके इस गैप को मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या उसके लिए किलोमीटर और आवर उसको नहीं पता, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये था। तो ऐसे बहुत सारे अनप्रिविलेज्ड ग्रुप हैं जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। क्या इस टूल का हम ऐसे भी एप्लीकेशन देख सकते हैं? रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड, ये जैसे अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है, JP मॉर्गन में काम करते हैं, UK में रहते हैं वो, तो उनसे मैं पूछा था, बेसिकली ही इज़ अ वेरी गुड कोडर। तो कह रहे थे कि अभी जो कंपनी है कोडर्स को हायर नहीं कर रही है, क्योंकि आप जो कोड करेंगे हो सकता है कि 1 वीक टाइम लेंगे या फिर 3-4 डेज लगेंगे, वो AI हाफ एन आवर और ये भी बहुत कम समय में करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 20 कोडर्स है, उसके ऊपर 2-3 मास्टर कोडर, उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र है, तो अभी ये 2-3 जो है वही लोग मिलकर सारा कोड कर दे रहे हैं यूजिंग AI टूल्स। अब क्या ये मेरा जॉब ले रहा है कि मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है? तो नया अपॉर्चुनिटी कैसे दे रहा है? तो हमें और सक्षम होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये टूल्स हमने बनाए और आज कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा इस टूल से ज़्यादा। एप्लीकेशंस के नए नए एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मैडम ने बताया हेल्थ केयर, डेफिनेटली हेल्थ केयर, प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस, हम डेटा देते हैं, डेटा को इतना ट्रेन करें। अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग एक्सरे से कोविड की सिवियरिटी का एक अनुमान लगाया उन्होंने, कुछ फेलियर्स हुए, कुछ कामयाब है, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, राइट। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है सर, वर्ल्ड फूड रिपोर्ट 2050, गूगल में अवेलेबल है, बड़ा इजीली आप कोई भी देख सकते हैं। इसके हिसाब से क्या कहता है कि बाय 2050 द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच 10 बिलियन एंड जो फूड हमें बनाना है, जो यील्ड चाहिए हमें, वो दैट इज 60% मोर देन व्हाट टुडे वी आर एक्चुअली यील्डिंग, एंड द एग्रीकल्चरल लैंड विल बी फ्री ओनली 4%। अभी कैसे करें? सो हेयर कम्स द रोल ऑफ AI कि अभी जो यील्ड है, आप देखेंगे कि कोई भी कितना भी अच्छा अगर टेक्निक्स लगा भी रहे हैं, बट यील्ड इज वेरी पुअर। तो दीज आर द सेक्टर्स विच आर एक्चुअली लुकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ AI। तो क्या हम करिकुलम में डिवाइड कर दें कि भाई चॉइस के हिसाब से आप अपना डिसाइड करो कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर, व्हाट इन व्हाट डोमेन यू आर ट्राइंग टू बी एम्प्लॉयड और इन व्हाट डोमेन यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। तो आप ऐसे स्कोप्स को हमें ढूंढना पड़ेगा। मे बी जैसे अभी राठौर साहब ने बताया कि 2 टाइप के प्रोजेक्ट दिखा दिया, तो ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है कि AI तो एक डेटा दे रहा है, रैंडम डेटा दे रहा है, जैसे उसको फीड किया वैसे वो दे रहा है। अब यहाँ पे आती है ह्यूमन स्मार्टनेस या ह्यूमन इंटेलिजेंस कि उस डेटा से मुझे चाहिए क्या। जैसे आप कोई भी पेटेंट अभी लिखने बोलो तो AI आपको मुश्किल से 15 मिनट में लिख के दे देगा, 10 मिनट में लिख के दे देगा, आप पूरा फिल्टर करके। लेकिन आप जब उसको सर्च कराओगे ESP2 या जिसमें भी, तो आप देखना कि वो जो पेटेंट का नंबर देता है वो किसी और चीज़ का दे देगा। और अगर हम ब्लाइंड फोल्डेड उसको यकीन करके चले, तो यहाँ पे ज़रूरी है एक बैलेंस अप्रोच का कि क्या हम इस पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि हम अपना क्रिएटिविटी, अपना इंटेलिजेंस को हम इसके हाथों सौंप दिया, या हम इसको जस्ट एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं। ये जस्ट लाइक एक गाड़ी होनी चाहिए जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा पूरा ज़िंदगी का वो फैसला कर दे। ऐसी नहीं होनी चाहिए। इट्स जस्ट ए टूल, उसका मुझे या हम में से सभी को अपने मतलब के लिए स्मार्टली यूज़ करना है। जैसे हायर एजुकेशन की बात करें या स्कूल एजुकेशन की बात करें, AI एनेबल्ड एडिप्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। कि हम, जैसे मैडम ने भी बताया, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि स्मार्ट करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए। एक बहुत नोन टर्म है ब्रेन ड्रेन, हम खूब सुने हैं, बचपन से मैं भी सुनता हूँ कि पढ़ रहे यहाँ पे चले गए विदेश नौकरी करने के लिए। एक ऐसा ड्रेन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में स्किल्ड मैन पावर का ड्रेन, और इससे इंडस्ट्री वाले लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। आप देखिए क्या होता है कि कोई भी IIT से पढ़ रहा हो, NIT से पढ़ रहा हो या कहीं से पढ़ रहा हो, जब कोई इंडस्ट्री किसी को जॉब देता है तो अपने हिसाब की ट्रेनिंग देती है इसको, और उसको वही काम करना होता है। वो 3-4-6 महीना वहाँ पे काम करने के बाद वो स्विच कर जाता है, इंडस्ट्री को बहुत लॉस होता है। तो क्या हम करिकुलम में ही ऐसे पार्ट, से फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में हमारा एक
एक पर्टिकुलर ब्रांच हम चला रहे हैं एरोस्पेस, तो मैं एरोस्पेस के कंपनीज को आज की डेट में ऑगमेंट कर लूँ हमारे साथ, और उनको क्या बेसिक स्किल या एडवांस स्किल चाहिए वो मैं करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर दूँ एंड यूजिंग द स्कोप ऑफ AI, ताकि उसको इमीडिएटली मैन पावर मिले ऐसा जो कि ट्रेंड हो, उसको तो ट्रेनिंग के पीछे जो खर्चा हो रही है उसके बाद जो ड्रेन हो जा रहा है उसको ये लॉस ना हो। तो इंडस्ट्री को भी हमारी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ट्यूनिंग की ज़रूरत है। इंडस्ट्री का जो बेसिक ये जो लॉस होता है, इस लॉस के बारे में भी शायद कहीं ना कहीं एकेडमिशियंस की रोल है कि क्या हम अभी से ही उनको ये ट्रेन मैन पावर दे दें। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सारे पार्ट्स एंड पार्सल है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग करेंगे, पर्सनल स्किल पाथवे करेंगे, इंडस्ट्री अलाइंड सर्टिफिकेशन, रियल टाइम लेबर मैपिंग। अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी को भी हम जांचने के लिए AI को क्रेडिबल भी करता है। आप देखिए बहुत सारे अभी आप पब्लिकेशन जो भी करते हैं, आप देखिए को AI से वो जांच लेगा कि AI है, फिर आप पैराफ्रेज करेंगे फिर भी बोलेगा कि AI से ही पैराफ्रेज किया है। तो देयर आर टूल्स। सो यहाँ पे बैलेंस की भी ज़रूरत है। कोई गलत बात नहीं है AI यूज़ करना, लेकिन साथ में हमारा क्या इंटरवेंशन है इसमें। AI टास्क फोर्स हम तैयार कर सकते हैं प्रोवोकेटिव पॉलिसी बनाने में। नेशनल AI पोर्टल्स ऑलरेडी है। कोडिंग को AI अवेयरनेस स्कूल करिकुलम में ज़रूरी है। फिनेंस में जैसे बहुत सारे आप देखिए रील्स का ज़माना है, तो क्या हम छोटे छोटे ऐसे पर्च कर सकते हैं बच्चों में कि वो कोई फालतू का कंटेंट ना देख के ऐसा कंटेंट देखे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेशनल गोल के साथ सब्सटीट्यूटेड हो। तो उसका इंटरेस्ट कैसे जगाए। जैसे बहुत सारे, जैसे मैडम ने बताया या सर ने बताया, बहुत सारे टीचर काफ़ी हैपनिंग होते हैं क्लास में, और बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि भाई जल्दी ख़त्म और मैं जाऊँ। तो एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग अडॉप्ट करते थे और जो टीचर्स अडॉप्ट करते हैं, हर क्लास में आपके पास एक वाव फैक्टर होनी चाहिए। ये वाव फैक्टर क्या होता है? वाव फैक्टर के लिए AI बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप क्लास में जाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट का क्लास में एक ऐसा चीज़ उस क्लास में बोल के आओ कि बच्चा सोचे यार ये तो गजब हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अथाह समुद्र नॉलेज है जो आपके इंटरनेट में है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में भी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन टीचर उसको जो दे रहा है, जो रेसिपी लेके गए हैं, उस रेसिपी में हर क्लास में आप एक वाव फैक्टर ऐड कीजिए और देखिए कि क्या चेंजेस ला सकता है। उसके लिए हम AI का यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे आज वेदर फॉरकास्टिंग से लेकर हर एक चीज़ कि आपका ऐसे बहुत सारे ऐप्स आगे, किसान साथी टाइप है ना, कि आप देखेंगे और आप बता सकते हैं कि ये कितने दिन में यील्ड करेगा, किस एज में इसको हमें निकालना है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फैकल्टी इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, AI लिटरेसी, डिजिटल पेडागोगी, अंडरस्टैंडिंग AI एथिक्स, डेटा पॉलिसी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सर सिर्फ शिवखेड़ा का यू कैन विन के जैसा नहीं रहना चाहिए, ये हमें फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कि जैसे हमने आज ये इम्प्लीमेंट कर दिया, आज ये, तो वी कैन हैव फ्यू फेजेस, और फिर हम अपने आप को भी रेगुलर चेक करें, हमारा परफॉर्मेंस मैपिंग हम खुद करें कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये टिक करें। और मुझे लगता है कि इसको यूज़ करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन ड्रीम ऑफ विकसित भारत 2047। थैंक यू वेरी मच। So thank you very much. So we have great learning today. I am thankful for the in-depth knowledge sharing by our today's speaker, Professor R.S. Rathor, Wing Commander Sonia Tanwar, and Dr. Vijay Chatterjee. So I open the session for the question answers. Maybe between 15 to 20 minutes we have question answer. Then I will conclude the session after my remarks. Thank you. I think that was a very mind-blowing session by eminent experts from different varsities. We spoke at large about governance, how AI can be used to cover research gaps, and how AI can be used, the tools, AI-powered tools can be used to run institutions. How can we use AI in an ethical manner? Question 1. Question 2, how can we ensure transparency and data privacy? Because AI is being used
by almost everyone today, students, teachers, administrators, corporates, everyone at large, researchers. But how can we use AI in an ethical manner, and how can transparency be ensured? Thank you so much. To any of the experts, it's open. Okay, am I audible to everyone? Okay, so thank you for the question, ma'am. Very relevant one. I'll just borrow the mic पहले, ये थोड़ा ethical काम यहाँ करती हूँ मैं पहले. So, ethical usage of AI, वो बिना human intervention के नहीं हो सकती, and that's where we spoke about it. If we are renting somebody else's AI to help or augment our institutions, वो ethical हो नहीं पाएगा. बट आपको पता है कि अगर हमें ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं लेनी जिसमें फंडामेंटल रिसर्च ही किसी कहीं से चुराई गई हो, सो दोज आर द एथिक्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन. वो रूल्स लगवाना वो हमारे हाथ में है. सो एथिकली अगर आपको एआई यूज़ करनी है तो अपनी खुद की एआई और उसके कंट्रोल्स खुद ही डिज़ाइन करने होंगे. अब एथिक्स के भी लेवल सब के लिए देखिए अलग अलग हैं. कहीं कहीं पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो चाहता है कि ठीक है बंदे ने सोचा खुद से और उसने अगर बड़ी कहानी लिखनी थी, वर्ड पार बढ़ाने थे, वो कहीं से ऑग्यूमेंटेशन ले लिया, एआई की हेल्प ले ली, दैट्स फाइन. बट किसी और कोई एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता. सो एज पर द एथिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप वो रूल्स डिफाइन कर सकते हैं टेक्निकली इन द सॉल्यूशंस, एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू हैव अ demarcation between ethical use of AI and the unethical use. So I hope I have answered the question. Okay, so what was the second part of the question, ma'am? How can data privacy be ensured? How can there be transparency? Okay, so data privacy ये बहुत ही I would say ambiguous concept है altogether. Because right now तो हम उस स्टेज पे आ गए. There was this one book if anyone has read कि 1972 I think. So उसमें उस बुक में कॉन्सेप्ट ही ये था कि 1972 तक हम क्या सोचेंगे वो भी प्रेडिक्शन कर लेगी AI. So हम क्या सोचेंगे कैसे प्रेडिक्शन कर लेगी, बिकॉज हम जो सोचते हैं हम फ़ोन पे बात वही कर रहे हैं, हम फ़ोन पे सर्फ वही कर रहे हैं, एवरीथिंग. तो अगर आप अपने फ़ोन को जो भी फीड कर रहे हो उस डेटा की प्राइवेसी आप भूल जाइए, चाहे व्हाट्सएप आपको कितना ही बोले कि ये इनक्रिप्टेड है वॉट एवर कम्युनिकेशन यू आर डूइंग, बट समवेयर इट इज़ गेटिंग रिस्टोर्ड. कैसे इतना अच्छा रिफाइन होता जा रहा है चैट जीपीटी और एनी AI टूल, वो आप ही के इनपुट से हो रहा है, अपने ही डेटा से हो रहा है. सो इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट और स्टोर आवर डेटा तो वो किसी और के सर्वर पे नहीं, हम अपने इंस्टीट्यूशन के सर्वर पे करें. एंड दैट्स अ गुड शिफ्ट मे बी एज अ नेशन ऑल्सो वी आर टेकिंग, एंड दैट्स द रीज़न वी आर शिफ्टिंग टू आवर ओन सोवरन डेटा सेंटर्स, कि हमें कहीं और ना तो डेटा स्टोर करना पड़े. जैसे चाइना, वो बहुत खुश है क्योंकि उसका डेटा है ही नहीं किसी के पास. It's not that we are not attacking or they are not attacking the cyberspace, but when you go to their basic data ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि उन्हीं के डेटा सेंटर्स के अंदर है. एप्लीकेशंस भी खुद की है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी खुद के हैं. सो एज अ नेशन थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में, बट एज एन इंस्टीट्यूशन ईजियर है. व्हेन यू डिज़ाइन योर ओन AI कि आपको क्या चाहिए, तो आप किसी और के डेटा इंजन पे भरोसा मत कीजिए, अपने खुद के डिज़ाइन करवाइए. थोड़ा सा इनिशियली पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बट इट्स अ इन्वेस्टमेंट वर्थ डूइंग. थैंक यू. परमिशन सर, क्विकली एक पॉइंट और ऐड कर दो. जस्ट जो मैम ने क्वेश्चन पूछा है एथिक्स के ऊपर, बीच में विंग कमांडर सोनिका ने भी कहा था, एक्चुअली हर एक इंस्टीट्यूशन की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो एथिक्स की पॉलिसी बने. तो हम लोगों ने क्या किया, IT पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट किया, लेकिन AI पॉलिसीज़ तक हम गए नहीं हैं. तो अल्टीमेटली हमको उस डायरेक्शन में भी सोचना पड़ेगा. IT के साथ साथ AI पॉलिसी पर भी काम करना पड़ेगा साथ साथ. थैंक यू. हेलो, हमारी एनिवर्सरी थी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को गाना जाना, तो दोनों में मन में ये
प्यार था, मैं मुझसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा और रहेगा। इस गाने के देखो यही हमने मोबाइल में सर्च किया। थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ को मैंने विचार आया ना, बहुत साल बोली है कि काम कर जीऊँगा। ये तो AI ड्राइविंग गाना था, हमने सिलेक्ट किया, गाना शुरू कर दिया। उसको दिमाग में एकदम गाना आया कि उसके बजाय हम ये गाना गाते हैं, हम सफ़र मेरे हम सफ़र पंख तुम परवाज में। तो इस गाने में ज़्यादा लाइवलीनेस थी और ज़्यादा मज़ा था। तो डेटा प्राइवेसी इससे रिलेटेड है कि हमारी चॉइस, हमें उसमें क्या आनंद आता है वो हम ज़्यादा सिलेक्ट करें, बनस्पत उसको सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट करें। I can add this in the privacy something if you allow. जैसा मैडम ने कहा हम हमारे रखें कॉस्ट ज़्यादा आएगी, so without any cost also nowadays the custom GPTs are available. So on ChatGPT, if you go for the custom GPT, that is the paid version, you have to pay something. But Google allows, there is a gem in the Google, and in the Google gem you can create your own private means AI, that all your data which you upload will remain only on your computer, and then the logic of the Google will be used. So whatever your data, that will not shared with the Google's AI version, and you can use that privately, your data also. Thank you for adding this, sir, and you are right. So right in terms of layered architecture है, देखो काफ़ी layers हैं, एक पर्दा उठाया, दूसरा उठाया, आपका डेटा 10वें पर्दे के बाद विजिबल है या 5वें के बाद, बस आप इतना ही कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी अगर उठाने वाला 10वां पर्दा उठाएगा तो वो उठ सकता है, बिकॉज वी आर इन दैट एरा। तो आई टेल माई डॉटर ऑल्सो एट टाइम्स कि एक बार डाल दिया फ़ोन पर, फिर भूल जाओ कि आपका उस पर कोई कंट्रोल है। तो अगर गूगल भी, व्हाट्सएप भी, बिकॉज पॉलिसी देनी पड़ती है, दे भी रहे हैं कि इनक्रिप्टेड है, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड आई एम नॉट सेइंग सी आपका हमारे डेटा पे किसी को क्या ही इंटरेस्ट है, मे बी दे माइट नॉट बी दैट वल्नरेबल, बट व्हेन आई टॉक फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव, नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, वी हैव बिन इन दैट सिचुएशन कि कहीं पर किसी की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का अगर ऑयल भी लीक करवाना है दूसरी कंट्री में बैठे हुए, तो वो भी फिजिबल है। वी आर इन दैट टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, सो इट इज़ जस्ट दैट कि लेयर्स हम ऐड कर सकते हैं, जो भी दे रहा है खुशी से ले लीजिए, बट दिमाग में हमेशा ये क्लियर रखिए, व्हाट्स ऑनलाइन इज़ नॉट योर्स एनी मोर। मैम, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि जब आपने चाइना की बात उठाई अभी, कि चाइना तो अपना सारा वर्ल्ड स्ट्रिक्ट रखे हुए है, बट हम लोग तो व्हाट्सएप और फेसबुक, जिनके डाटा सेंटर यहाँ है ही नहीं, वहाँ पे हम में से शायद अभी जितने लोग होंगे सभी लोग अपना पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, इवन हमने देखा है कि अभी मैं काफ़ी सारे ऐड देखते हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ है ईमेल। तो ईमेल को भी यदि अपन देखेंगे तो सबके जीमेल पे आईडी मिल जाएंगे। तो जीमेल से जब आप कॉरेस्पोंडेंस कर रहे हो तो डाटा तो गूगल के सर्वर पे जा ही रहा है। और इवन स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट्स के आप देखिए कॉरेस्पोंडेंस, टेंडर्स वगैरह आप देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट आज के अखबार में भी देख लेंगे, तो गवर्नमेंट के टेंडर्स में भी जो कॉरेस्पोंडिंग ईमेल होती है वो जीमेल ही होती है। तो ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अपन जब एआई एरा में पहुंच गए तो डाटा तो मैं सोचता हूँ डाटा प्राइवेसी जैसी चीज तो मुझे लगता है अभी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ही रहेगी। मैम, सो आप सही बोल रहे हैं सर, सी वी एब्सोल्युटली, एंड हम AI एज अ AI सोवरन नेशन वो हम इवॉल्व ही कर रहे हैं अभी। सी जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था तब तो हमने किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि हमें खुद का बनाना चाहिए, हमने सब खरीदा, हमने डिफेंस फोर्सेस में भी वो लगाए, बिकॉज मे बी वी वर नॉट इवॉल्व दैट टाइम। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर में इतने अटैक्स हुए हैं तो आज हमें समझ में आया कि जोहो को ले लेना चाहिए, हमें किसी फॉरेन कंपनी का नहीं लेना चाहिए। सो दीज आर द डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स जो मे बी आज अगर हमें समझ में आ रहा है, हम बच्चों के दिमाग में डालेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो माइक्रोसॉफ्ट में मे बी जॉब नहीं ढूंढेगा, वो सोचेगा मैं खुद का कुछ कर लूँ। बट देन इट इज़ अ इकोसिस्टम, वो उसको आप हम कितना सपोर्ट कर रहे हैं उसके स्टार्टअप को या उसके आइडिया को, अगेन वहाँ पर है। अब हमारा तो सिद्धांत है ना शुभ लाभ, तो हम कम्युनिस्ट है नहीं चाइना की तरह की सब बंद कर दिया। तो इट इज़ अ नेशन हु इज़ इवॉल्विंग, बट हाँ छोटा छोटा भी हम सोच कर उस एंगल उस स्टेप में काम करेंगे, दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल,
हाँ, तो जोहो को स्ट्रेंथन कीजिए आप अपने इंस्टीट्यूट में. सो सी अभी निक जो हमारा सर्वर है वो हमारे खुद के ही डेटा सेंटर्स में रहता है, बट एज आई सेड कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक ही दिन नहीं चेंज हो जाएंगे. दे कांट, बिकॉज इतनी बैंडविड्थ है भी नहीं हमारे पास. कितने ही डेटा सेंटर्स हैं. असली जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है? इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने तो तब से राजस्थान.gov.in पे जाने का वे में 2010 में मैंडेट दे दिया. अभी आप देखेंगे तो कई सारे सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के मिलेंगे जिसमें कैटेगरिकली चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाले हुए हैं कि नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल यूज जीमेल. बट इवन देन वो चीज़ हो नहीं पाई. जस्ट आपने जो विषय बोला बैंडविड्थ वाला, सर ये ह्यूमन एंगल जो है वो तो किसी के बस में नहीं है, वहाँ डंडा ही चलता है. तो आई कम्प्लीटली अग्री विद दी फौजी फिनोमिना देयर कि जो ये रूल्स है जिनको लगाने चाहिए और लगा रहे हैं. अगर DPDP अब इम्प्लीमेंट हुआ है, अब अगर आपके इंस्टीट्यूट से किसी का डेटा लीक होगा एंड इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, मैं कल इट कैन बी चेक कि कहाँ से लीक हुआ है. आपको 250 करोड़ तक का भी फ़ाइन देना पड़ सकता है. बट ये पहले नहीं था रूल. तो आप अगर एक इंस्टीट्यूट है, आपको क्यों पैसे खर्च करने हैं? बट आज आप करेंगे क्योंकि लॉ है ये, और अगर आप लॉ को मतलब वायलेट कर रहे हैं तो देन यू विल पे फॉर इट. तो ये डंडा चाहिए इन सिचुएशंस में, विच एज अ नेशन स्लोली वी आर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग. एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है कि impact of AI on the mental health and the reasoning on the student's mind. So that is a very worried situation. Nowadays, today's students are not spending much time on study. Whatever the question we are going to give them, they are just searching and giving the answer. They are not spending the time, so their mental reasoning are going to be reduced or decreased. So that is a very problematic situation. So what is your thought about it? Any panelist? Anyone wants to answer? थैंक यू सर. एक्चुअली इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिकॉज ये तो एक बिहेवियरल चेंज है, बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात है. तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे कई बार ये मुद्दा उठता है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का कितना होना चाहिए. तो अगर देखें तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को कितना जल्दी मोबाइल दे रहे हैं. जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में देना पड़ा, तो ये तो एक बिहेवियर चेंज से हो सकता है मेरे हिसाब से. और बहुत सारे कंट्रोल भी आप कर सकते हैं. सपोज़ कि आपका बच्चा भी अगर मोबाइल उसके हाथ में है, लेकिन आप बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं. लेकिन कोई कब लगाएगा? जब वो एटलीस्ट उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको समझेगा. तो अभी ये ज़रूरी हो गया है. मैं बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जो 75-80 जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड के है भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से मोबाइल चला लेते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें, है ना. तो इसका मतलब क्या है ना कहीं अडॉप्ट करने की ज़रूरत पूरे जनरेशन को है कि हम जब किसी ऐसे वनरेबल जैसे हमारा बच्चा हो या किसी को दे रहे हैं, तो कितने सारे कंट्रोल्स हमने उस पर दिए हैं और क्या वो एक्सेस कर सकता है, क्या वो एक्सेस नहीं कर सकता. तो जैसे बहुत सारे जगह पे ये भी है कि आपको एक लॉगिन आईडी करना पड़ेगा, कुछ एज रिस्ट्रिक्शन होते हैं, किसी में पेड होता है, किसी में फ्री होता है. तो मुझे लगता है कि क्यूमुलेटिव बिहेवियर अडॉप्शन चाहिए, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा या सब जानते हैं हम कि इंटरनेट में सब कुछ फ्री है. आज आपको कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. एट योर ईज़ आप देख सकते हैं. लेकिन वो हमें जो हैंडसेट है उस पर भी बहुत सारे कंट्रोल्स, पासवर्ड लॉक, ये सारे फैसिलिटीज़ हैं, तो हम कर सकते हैं ऐसा चीज़. मतलब स्टूडेंट्स की रीजनिंग कैसे इम्प्रूव हो, उसके लिए क्या किया जाए? हमारा असेसमेंट प्रोसेस सर, आप जो बोल रहे हैं, वी हैव टू ग्रो एज ए टीचर, वी हैव टू ग्रो. हमारा असेसमेंट सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए. आपको उसको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा. So I will add to what ma'am is saying, because I am a mother of a 9-year-old daughter and वो आजकल के बच्चे बहुत आउटस्मार्ट हो चुके हैं. So उसको अगर मुझे कुछ टास्क देना पड़ता है तो AI जो अगर स्ट्रेट अवे उसका आंसर दे सकता है, अगर ऐसा टास्क मैंने दिया तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं देयर इज सो मच ऑफ एक्सेस टू इट, तो शी माइट यूज़ इट. तो वहाँ पर ये जो चोर सिपाही वाला
चीज़ है वो काम में आती है, एंड दैट इज़ वेयर द क्रिएटिविटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स और द टीचर्स विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज़ कि आप बच्चों को टास्क कैसे दे रहे हैं. आपको पता है वो AI से एक सिंपल आंसर बता देगा अगर आप उसको स्टेप से डिफाइन करने के लिए बोलेंगे. आर यू गिविंग हिम अ टास्क दैट इज़ आस्किंग हिम टू थिंक अबाउट इट, उसमें आपकी भी हेल्प AI कर देगा. बट वो करने के लिए हमें क्यूरिकुलम अपना ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स ऐसे डिज़ाइन करने पड़ेंगे. अदरवाइज the only answer is being one step ahead of the technology, nothing else. Thank you. That means we need to change the assessment model. Absolutely. Thank you. I am in medical profession. I am dean of a medical college. This we have adopted. I myself took a course in AI and the learning management system of MBBS students and postgraduates. Their assessment, their logbook, submission, all these I have developed myself a app on Lovable because Python code. So we have to outgrow our students. We have to outgrow. We have to adopt. It is already into our space. AI has entered. So we have to do, and everybody can do actually. It is step by step guides are there. So any other quick question? मेरा एक philosophical वो है. In your presentation, you told 4 or 5 risks. So, to best of my experience and knowledge, only the last one could be treated as a risk to me. Previous 3 or 4, like they will learn faster and better outside the classroom. But this is not at all a risk. This is better. So sir, हाँ बच्चों के लिए इट इज़ बेटर, बट फॉर द इंस्टीट्यूशन इट माइट बी अ रिस्क. रीज़न बीइंग इज़, देखिए जब हम एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो इट्स नॉट जस्ट द एकेडमिक एजुकेशन दैट वी ग्रैब. अब अगर बच्चा वहाँ से सीख रहा है और उसकी रिक्रूटमेंट भी हो रही है, he or she is losing out on a lot of other behavioral developments which being in the offline setup he can. बट अब उसको लग रहा है रिक्रूटमेंट तो यहाँ से सीखने से हो रही है. So in that case, that is not a risk. We need to catch up with the other things. Yeah, so risk can be positive also, sir. ऐसा नहीं है, रिस्क ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव ही है. इट्स अ पॉजिटिव ओनली. बट अगर एज एन इंस्टीट्यूशन मैं चाहूँ कि बच्चा सीखे भी अच्छा और उसकी कोर वैल्यूज़ और उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो, तो दैट इज़ वेयर लाइक वी कैन. You mean alignment रहे in the learning और जो tools वो use कर रहा है and other things, other developmental things. Right. अब वो philosophical difference खत्म हो गया. Thank you so much. So thank you very much. So I will give them concluding remark. I will quickly review the speakers' talk. I briefly tell about that. Professor R.S. Rathore, which tells some about AI applications in education where teachers find difficult to adopt the techniques, but it is very essential, since without AI in future it is very difficult for teaching and learning as well as for research. And as he told that how the AI is misused for writing the projects and deciding the areas, emerging areas. So if it is used intelligently, then it will be a blessing. And one of the main application he has highlighted is soft skills and effectively use of the data. Then our second speaker, Sonia Tanwar, Madam, use of AI in education will be integral part of our education. He shows how e-commerce is enhanced its business using AI, how AI is beneficial for the healthcare as well as for the business persons who are working in the insurance area. AI use in education also gives the architecture about the data layer, intelligent layer, decision layer, and the AI governance. How AI can be used for building the nation. It predict the administration, admission of the students, dropout rate of the students, and optimal faculty allocation. That is the one of the good use of the AI in education. So AI, two types of institute, AI assist or AI driven. So they are it's a very good example, and many related areas which will change the institute outcome.
and our next speaker, Professor Vijay Chatterjee, to accept the technology and inbuilt your education with AI. The national priority will be achieved only by the use of AI in the education and other related areas. One of his application to be used in the agriculture, and how we can enhance the yield of the agriculture by using AI. And lastly, what he told, that there should be a balanced approach between the use of AI and the human intelligence. So that he is very right in his concluding remark. So with this, I add few things how we can enhance our research application using AI. As we all know that AI is transforming our way of communication, our learning patterns, our thinking, and it can extent, it can changes our mindset so that it will be exploited and explored. So its applications in various areas influencing industries, institutions and individual lives. So this is the era of AI revolution. AI intelligence learns from data, predict outcomes and make intelligent decisions. This helps the professionals to focus on their creativity, strategy, innovation rather than the routine paperwork. AI also plays a very important role in the education. AI-driven learning platforms can analyze individual performance and provide customized content for the students, and AI-based tools help for the real-time feedback and assess the performance of the student. In the research area where we have used speech recognition, we can convert the speech into the text. This type of application of AI can help the students with disabilities. The AI enhance the research productivity and quality. The research scholars get benefited from the readily available online papers, and AI enabled to give them the compact outcome of this by scanning the papers and give the relevant research area, which make the summary, and they help them to write the review chapter very easily, which is a part of the thesis, of every thesis. So, but will this help him to become innovative, to do new research and get some good new topic for the research? Because everything is done by the AI. They did not read the papers, they did not understand the core of the research and how they will do the research. So AI in administration also helps us. It helps us to find the students. When the group of students are there in the class, we have to identify the slow learners and the fast learners, and this will help the students. So suppose they are slow learners, we can bifurcate them and give them teaching with new tools. It also helps in the transparency learning and also very much helpful in the attendance system. As far as the employability is concerned, no doubt coders may be replaced, not now but in near future, because now AI agents are doing their work, and students should right now start focus on the deep tech jobs rather than the coding jobs, because there is a company known as Abnormal AI. It's US based company, and in the report he said that 70 employees which they did work in 3 years, your AI tool has done in half an hour. So this is the speed which is achieved by the AI. So the faculty should make the student aware about these technologies. What is the future if AI agents replaced each coder, where these students will go if they did not update in the deep tech technologies. So we must promote the responsible AI uses, ensure transparency, fairness, accountability and inclusivity in our policies and guidelines, safeguard our data security and prevent misuse. So let us adopt artificial intelligence not blindly but with human intelligence to enhance our education and research and achieve the Viksit Bharat 2047 vision. Thank you very much. Thank you. On behalf of organizing committee, now I will take this privilege to propose vote of thanks. Our deep appreciation goes to our esteemed session chair, Professor Shukla,
Director SVNIT Surat, for guiding the deliberation with remarkable insight and academic depth. Sir, your presence elevated the intellectual discourse of this session. We are profoundly grateful to our distinguished speakers, Professor R.S. Rathore, sir, for illuminating the context, scope and readiness of AI in education with clarity and foresight. Wing Commander Sonika Tamar, Founder CEO DigiTruth AI, for sharing innovative perspective on technology-driven transformation in higher education. Your thought-provoking insights have truly enriched our understanding of how artificial intelligence can redefine the academic ecosystem. Special thanks to Dr. Vijay Chatterjee for the discussion so effectively and ensuring meaningful engagement throughout the session. I would also like to acknowledge our valuable support to our Chief Coordinator, Professor Prashant Gupta sir, and our Session Coordinator, Dr. Lal Krishna ji, our Session Supervisor, Dr. Pallavi Kaushik, Dr. our Volunteer, Dr. Santosh Gupta ji, and our partner institution, Shri Mahavir College, Dr. Simi Choyal ji, and our NCC cadets, Naman, Nikhil and Aditya, for your dedication behind the scenes ensure the smooth conduct of the parallel thematic session. Our sincere gratitude to all the listeners, all the participants, all the institutional leaders, academicians, researchers and participants who contributed through their presence, engagement and insightful interaction. Your participation has made this summit meaningful and impactful. As we reflect on today's discussions, one message resonates clearly. The future of higher education lies in our readiness to embrace innovation, integrate AI responsibility and lead institutions with vision and adaptability. With gratitude in our hearts and renewed commitment to excellence, I once again thank each one of you for being part of this session. Thank you all. Jai Hind. Now, I would request all of you for a group photograph with our esteemed speakers and session chair, please. Here, we will take a photograph. अब आप बताइए कैसे फ्रेम में नहीं आएंगे आप कहाँ सर जहाँ पर रह जाएंगे सब ऐसे नहीं सर बाहर ज़्यादा चलो बाहर जाने को